Good morning to everyone. Recording. This is the sum we will be doing today in front of your screen. Ranjit, Manjit and Paramjit are equal partners of Hindal and Company, Mrs. Hindal and Company. So the partners, they will be sharing their profits and losses equally as given in the question. The balance sheet of the firm as on 31 December 2014 is as follows. The liability side, balance sheet is given. The liability side, the capital account is there. Ranjit 50,000, Manjit 1 lakh. And you can see that Paramjit is having a debit balance. Now, what does this mean? See, the balance of 30,000 is being shown in the within the bracket. Now, see, we have done many sums where we have always seen that we have never seen such situation where there is a debit balance of any partner. Capital balance is debit. Normally, capital is a liability, so liability has credit balance. But here we can see that it's a debit balance. So what does this mean? This means that instead of bringing cash to the business, he has to pay money to the business. So that is 30,000 is his negative capital. So capital is having a debit balance. Capital is having a debit balance. So when we prepare the capital account, we will have to show in the debit side to balance brought down because it's a debit balance. Then loan from bank, creditors, loan from bank and creditors liabilities are given. When we go to the asset side, we have fixed asset, land, building, plant and machinery, and we have current asset, stock and debtors. Now, on the date, it was decided to convert the partnership into limited company called Hindal Limited. So what happened on the date, that is 31/12/2014, on the date of balance sheet, the partners decided to convert their partnership into a company. So here what happened, the partners have converted their business into a company and the name of the company is Hindal Limited on the following terms. Now what are the terms given? Land will be revalued to 1,50,000. So the new value, the old value was 50,000 and the new value of land will be 1,50,000. Plant and machinery has been revalued to 2,50,000. The old value is 2 lakh. The new value is 2,50,000. Depreciation amounting to rupees 20,000 to be written off on building. So the value of depreciation is given 20,000. The value of building is 70,000. So depreciation has to be deducted and we will get the new value of the building, that will be 50,000. The provision, a provision of 10% of book value to be made for obsolete stock. So there is a write-off in stock. So 3 lakh minus the value of stock is 3 lakhs. So 10% we have to deduct and then we will get the new value of the stock. And same way there is a provision for doubtful debts to be made at 10% on debtors. Debtors is 1 lakh. We have to make a 10% provision for doubtful debts. That will be 10,000. So the new 1 lakh minus 10,000, we will get the new value of debtors. The discount of 6% would be earned on creditors when paid out. So creditors are giving us a discount of 6%. So 1 lakh creditors, 6% discount will come to 6,000. We will have to minus because it's a discount and we will get the new value of the creditors. Now, how is the PC settled? See how the discharge of PC is given. The new company will issue 12,000 equity shares of rupees 10 each, credited as fully paid up
such share capital being valued at rupees 1,50,000. Now, if you multiply 12,000 shares into 10, you get 1,20,000. But the value of the share they are saying is 1,50,000. Can anyone tell me the increase? What is this increase in the value called? 12,000 into 10. The face value of a share of per share is 10 rupees. So 12,000 into 10, you should get 1,20,000. But they say that the new company valued the share capital at 1,50,000. So the additional 30,000 is what? What is additional 30,000? Can anyone answer? What is the additional 30,000? This additional 30,000 is the premium. This additional 30,000 is the premium. Means the share, the face value is 10, but the new company has issued the share more than the face value. Therefore, instead of 1,20,000, the value of the share is 1,50,000. And they say the balance is to be discharged by issue of 10% debentures of rupees 100 each. They say the PC is discharged as equity shares will be 1,50,000 and the balance will be debentures, 10% debentures of 100, but we don't know the balance amount. So this cannot be net payment method, because under net payment method, everything is clear. They clearly say that how much is the shares, how much should be the debentures, everything will be like given in a way that it can be calculated. But here that balance cannot be calculated, but the revised value of all assets are given. So what is this method of PC? There are three methods of PC. First one, lump sum method, wherein the answer of the PC is directly given. The PC is given directly. We need not to calculate. So directly PC is not given. So not lump sum method, not even payment method, because the PC is not payment is not given clearly. So this should be net asset method. We have only three methods. This is not lump sum method. This is not payment method. So this should be net asset method. So we have all the new value of assets and liabilities given. So we will use that value and we will calculate the purchase consideration. So what they have told us to calculate, what we have to calculate here, show the necessary ledger accounts to close the books of Hindal and company and show the opening balance sheet of the new company. So what we have to do, we have to prepare the ledger accounts in the old book, realization account, partners capital account, and we have to prepare the new balance sheet of, we have to prepare the opening balance sheet of the new company, Hindal Limited. See, given in the question, Hindal Limited is the name of the new company. So all the partners are solvent and have sufficient cash resources as may be necessary to settle the respective accounts. So what they say that एक दूसरे के अकाउंट को सेटल करने के लिए अगर चाहिए तो सारे पार्टनर सॉल्वेंट हैं, तो they will bring necessary cash from their homes, from their home if such requirement will arise. ऐसा जरूरत है पैसा लाने का, तो they will bring from their respective homes. So and what is told that the shares and debentures are divided equally among the partners. जितने भी shares दे रहे हैं and जितने भी debentures देने वाले हैं वो equally divide होगा among the partners. So this is the question. Now, as you all know, the question on PC, the question on conversion will always start with calculation of PC. So which method this is? This is, we read the question. See, it's not compulsory to write which method, but still for your knowledge, this is net asset method. This is net asset method. So we'll write here net asset method. Now, particular rupees. Now what we do,
we write here all assets taken over by the new company. So we write those assets which are taken over by the new company. So capital A, all assets taken over by new company in revised or book value. In revised or book value. So with this, what we will do, we will have to see what all assets are given in revised and book value. Land, fixed asset land. New value given 50 ka 1,50,000. So we'll write land 1,50,000. After land, what is given? After land, what is given? Building. बिल्डिंग का नया वैल्यू दिया है. यस, डेप्रीसिएशन है 20,000 का, वो राइट ऑफ करना है. डेप्रीसिएशन अमाउंटिंग टू 20,000 टू बी रिटर्न ऑफ ऑन बिल्डिंग. So building is 70,000. Writing of 20,000. What we will get? How much value we will get? 70 में 20 गया तो we get the new value 50,000. Now building के बाद what asset we have in the balance sheet? We have plant and machinery, and plant and machinery is revalued at rupees 2,50,000. New value is given. So we will take the new value. Plant, how much is the new value? 2,50,000. $2,50,000. 2,50,000 is the new value. After plant, what is that? Current asset में we have stock and debtors. स्टॉक में भी 10% माइनस करना है एंड डेटर्स में भी 10% माइनस करना है. स्टॉक इज 3 lakhs, उसमें 10% माइनस करेंगे तो 30,000 माइनस करना पड़ेगा. 3 lakh minus 30,000 will be 2,70,000. करेक्ट. सो स्टॉक में 10% ऑब्सलीट हो गया, दे आर सेइंग. सो वी विल राइट स्टॉक 10% obsolete हो गया तो the new value will be 2,70,000. Same way debtors पे भी we have to find out 10% value. So how much? 1 lakh पे 10% minus कर दिया. So 1 lakh पे 10% is RDD, तो 10,000 minus कर दिया. So the new value will be 90,000. Is there any other asset given? गुडविल दिया है, गुडविल का नया वैल्यू. हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया, गुडविल का नया वैल्यू नहीं दिया है. इफ नॉट गिवन वी विल नॉट राइट. एंड सारे असेट्स हमने लिख लिया. सो ऑल द असेट्स वी हैव रिटन. नाउ इसका टोटल निकालना है. इसका टोटल निकालो एंड हमें लेस करना है बी ऑल लाइबिलिटीज टेकन ओवर, all liabilities taken over by new company in revised or book value, or revised or book value. So let us see what all liabilities are there. Let us see what all liabilities are there. What all liabilities are there? See, capital is there, but capital comes in the partner's capital account. Loan from bank is there.
other than capital, there are two other external liabilities, which is loan from bank and creditors. There is a revised value given of creditors 6% discount, but for loan from bank, nothing is given. So what we will do, we will write loan from bank. We will write loan from bank, loan from bank, and we will write creditors. Loan from bank is 5 lakh. Loan from bank is 5 lakh and creditor is 1 lakh. So 1 lakh में 6% discount given in the question. 6% discount on creditors. So 6% discount करेंगे तो 1 lakh का 6% is 6,000. So नया वैल्यू क्या रहेगा? 6,000 माइनस करके it will be 94,000, correct? It will be 94,000. So now take the total. What are you getting for liability? 5,94,000. And what are you getting for asset? 8,10,000. Are you getting the same amount? 8,10,000. Very good. So now what PC you are getting? What PC are you getting? Purchase consideration. What is the PC? Minus A minus B karo. A minus B. 2,16,000 everyone are getting. This is A, sorry, this is A and this is B. So A minus B. We are getting 2,16,000. So PC is done. Now what we will do, discharge of PC. इसके बारे में what is given? Equity share 12,000, 10 rupees का. जैसे 1,50,000 में देना है, मतलब जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं that will be the when you divide 1,50,000 with 12,000 shares, आपको पता चलेगा प्रीमियम पर शेयर कितना है. You will get the premium per share. So यहाँ पे जैसे 12,000 equity share of 10, but कितने में दे रहे? 1,50,000 में. So equity share capital 1,50,000 है and balance by debentures. So देखते हैं, let us see that discharge of PC क्या है? Discharge of PC में we have 12,000 equity shares of ₹10. कितना? At how much? Please तो 1,50,000 को डिवाइड करो. कितना? 1,50,000 डिवाइड बाई 12,000 शेयर्स. आपको पता चलेगा कि कितना टोटल कितने में दिया है. तो यू कैन फाइंड आउट प्रीमियम कितना है, कितने में दे आर गिविंग द शेयर. 1,50,000 डिवाइड बाई 12,000 मतलब 12.5 आपको मिलेगा. ₹12.5. तो इसमें 2.5 का प्रीमियम है. सो इसमें 2.5 का प्रीमियम है, हमें पता चला. सो ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया. नाउ हम क्या करते हैं, 12,000 इंटू 12.5 किया तो आंसर मिलता है 1,50,000. आंसर मिलता है 1,50,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 1,50,000. करेक्ट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 1,50,000. ये 12.5 किधर से आया, दैट ऑल्सो आई हैव गिवन इन द
आई हैव रिटर्न इट। जब हमने 1,50,000 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर से, तो पता चला एक शेयर कितने में दे रहे, तो बाकी का इट विल बी डिबेंचर्स। जरा देखते हैं डिबेंचर्स का कुछ परसेंटेज इज गिवन। 10% डिबेंचर्स ऑफ 100, 10% debentures of 100 each, of 100 each. This is what? This is balance. हमें पता नहीं है कितना अमाउंट है, but do we know the total value of PC? PC का क्या वैल्यू है, do we know? 2,16,000. So balance कितना रहेगा, माइनस करो, you will get 66,000. So ये 66,000 क्या है? This is debentures. 1 lakh कैसे पता चला? PC we know from step number 1, 2,16,000 है. इक्विटी शेयर्स we know 1,50,000 है. डिफरेंस निकाला, हमें पता चला that debentures is 66,000. So now what they have told, necessary books में account we have to prepare the necessary accounts in the old books. So old books में यही accounts अभी prepare करते हैं. By पहले तो balances transfer करते हैं, by balance brought down. So by balance brought down में किसका capital कितना है? 50,000, 1 lakh, 30,000. Very important. 50,000, 1 lakh. But 30,000 as you can see is a debit balance. ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है, डेबिट बैलेंस है. अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस बॉट डाउन, टू बैलेंस बॉट डाउन. लास्ट में 30,000. समझा? दिस इज द ओनली डिफरेंस हियर इन द सम, रेस्ट एवरीथिंग इज द सेम. सो हमने ये कर दिया, वी हैव ट्रांसफर द कैपिटल बैलेंस, देयर इज नो रिजर्व. सो रिजर्व देने का जरूरत नहीं, देते तो इक्वली देना पड़ता एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सो नाउ व्हाट वी विल डू, टू असेट्स, सारे असेट्स ट्रांसफर करो डेबिट साइड में. Transfer all the asset. कर दिया. फिर अभी नेक्स्ट स्टेप, ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज. सॉरी पहले अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, देन वी विल ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज. ओके डन. नाउ लाइबिलिटीज लिखना है ना, बाय लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज में क्या लाइबिलिटीज है जो एक्सटर्नल है? लोन फ्रॉम बैंक एंड क्रेडिटर्स. रियलाइजेशन में हमेशा बैलेंस शीट वैल्यू लेते, न्यू वैल्यू सिर्फ पीसी में लेते. गॉट इट? न्यू वैल्यू हम सिर्फ परचेज कंसिडरेशन में लेते हैं, एंड रियलाइजेशन में हम हमेशा ओल्ड वैल्यू लेते हैं. इसके बाद वी विल राइट द पीसी बाय, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कंपनी? हिंदल लिमिटेड अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पीसी? 2,16,000. दिस इज व्हाट? दिस इज पीसी. ब्रैकेट में पीस. ओके. अब इज देयर एनी असेट लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर? हमने वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड हिंदल लिमिटेड अकाउंट. हिंदल लिमिटेड अकाउंट बनाएंगे, बनाना है हिंदल लिमिटेड अकाउंट. सो वहां पे लिख के डिस्चार्ज ऑफ पीसी दिखाना पड़ेगा. दैट बिकम्स वन एडिशनल स्टेप. सो आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड हिंदल अकाउंट, बट इफ वी वांट वी कैन प्रिपेयर हिंदल लिमिटेड अकाउंट. हिंदल लिमिटेड अकाउंट, हिंदल लिमिटेड अकाउंट बनाएंगे तो दूसरा एंट्री उधर आएगा,
particulars. What is this? Particulars, rupees, particulars, rupees. यहाँ पे बाई हिंडल हो जाता है टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,16,000. अब इसको कैसे डिस्चार्ज किया वो लिखना है. बाई इक्विटी शेयर्स, बाई डिबेंचर्स. इक्विटी शेयर्स गिवन इन द क्वेश्चन. डिस्चार्ज ऑफ पीसी में भी हमने देखा. डिस्चार्ज ऑफ पीसी देख लो, आपको ये मिल जाएगा 1,50,66,000. सो दिस अकाउंट इज डन. ये अकाउंट टैली हो जाएगा. अभी क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ऑल असेट्स आर टेकन, ऑल लाइबिलिटीज आर टेकन. तो इसको बंद करो, क्लोज दिस अकाउंट and see what you are getting. What is the total? 8,16,000. So here also it will come the same, 8,16,000. Is it a profit? कितने का प्रॉफिट है, देखो कितने का प्रॉफिट आ रहा है. टोटल करो और माइनस करो एंड टेल मी कितने का प्रॉफिट आ रहा है. पार्टनर्स कैपिटल, जो भी प्रॉफिट आएगा, सी विच साइड इज हैवी. हाँ, क्रेडिट साइड इज 8,16,000. आई हैव गॉट दैट. डेबिट साइड का टोटल है 7,20,000. सो कितने का प्रॉफिट है? 8,16,000 से 7,20,000 माइनस करो. हाउ मच प्रॉफिट आर यू गेटिंग? 96,000 का प्रॉफिट आ रहा है. Are you getting profit of 96,000? ये 96,000 को हमें क्या करना है, ये 96,000 को हमें पार्टनर्स में डिवाइड करना है. We have to divide among the partners, correct? पार्टनर्स कौन है? R है, M है एंड P है. और ये लोग इक्वल पार्टनर्स है गिवन इन द क्वेश्चन. सो डिवाइड बाय 3 करो 96,000. एक एक को कितना प्रॉफिट मिलेगा? गॉट इट? 96,000 when divided by 3, because all the 3 are equal partners, we get 32,000. अब बाई पार्टनर्स रियलाइजेशन, सॉरी 2 पार्टनर्स रियलाइजेशन में अपना पार्टनर्स में हो जाएगा बाई रियलाइजेशन. गेटिंग इट? 2 पार्टनर्स में हो जाएगा बाई रियलाइजेशन. 32,000 और परम में भी आएगा 32,000. अब इसको बंद करना है. नाउ क्लोज दिस अकाउंट. ये हो जाएगा 82,000, ये हो जाएगा 1,32,000 और ये हो जाएगा 32,000. पर ये करने से पहले है ना, बिफोर टेकिंग द टोटल, क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट शेयर्स एंड डिबेंचर को कैसे डिवाइड करना है? सेटल द रेस्पेक्टिव अकाउंट बोला है. पार्टनर सब सॉल्वेंट हैं, अगर उनको किधर भी पैसा अगर कम पड़ता है तो वो लोग घर से लाएंगे. तो हमें पता नहीं डेबिट ज्यादा रहेगा या क्रेडिट ज्यादा रहेगा. क्वेश्चन में बोला है ना, ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड हैव sufficient cash resources as may be necessary to settle their respective accounts. तो इसके बाद एक चीज बोला है, देखो, shares and debentures divided equally among the partners. So हमें shares and debenture को equally divide करना है partners में. तो यहाँ पे 2 shares कितने का है? 1,50,000 का. equally divide करो, कितना आ रहा है? इक्वली डिवाइड करो 1,50,000 डिवाइड बाई 3. इसको भी इक्वली डिवाइड करो. डिवाइड द डिबेंचर्स इक्वली. 66,000 को इक्वली डिवाइड करो. हाउ मच आर यू गेटिंग?
66,000 डिवाइड बाई 3 इक्वली डिवाइड करने पे यू गेट 22,000, करेक्ट। आप टोटल कर, अभी डिफरेंस निकालो, अभी डिफरेंस निकालो, किधर डिफरेंस आ रहा है। नाउ कौन सा साइड हैवी है, यहाँ पे वी कैन सी दैट 82,000 पहले वाले का रंजीत का क्लोज करते हैं, वी कैन सी दैट द क्रेडिट इज हैवी, डेबिट में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10,000। सो ये 10,000 का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये 10,000 का जो डिफरेंस है उसको इधर बोलेंगे टू कैश बैंक। मतलब जो भी पैसा कम पड़ेगा वो पार्टनर लोग अपने घर से लाएंगे या बिजनेस से लेंगे, ऐसा बोला है ना, दे हैव सफिशिएंट रिजर्व। अगर कम पड़ेगा तो जो भी है डिफरेंस क्वेश्चन में बोला गया है वो कैश बैंक में सेटल करेंगे पार्टनर्स। सी क्वेश्चन में बोला ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड हैव सफिशिएंट कैश रिसोर्सेस टू सेटल देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट। तो रेस्पेक्टिव अकाउंट को सेटल करने के लिए दे हैव कैश रिसोर्सेस। नाउ इसके बाद आई कैन सी दैट द क्रेडिट इज हैवी। I can again see that Manjeet's also credit is heavy. मंजीत का क्रेडिट साइड हैवी है, सो कितने के लिए हैवी है, व्हाट इज द डिफरेंस कमिंग, इज इट कमिंग 60,000। तो इसके बाद व्हाट अबाउट परमजीत, परमजीत का वी कैन सी दैट डेबिट इज हैवी, परमजीत का डेबिट इज हैवी। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 70 का आ रहा है ना, उसको बोलेंगे बाई कैश बैंक, बाई कैश बैंक। समझा, जिधर भी डिफरेंस आ रहा है, डेबिट में डिफरेंस आया तो टू कैश, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो बाई कैश। अभी कैश बैंक अकाउंट हमने बनाया है, कैश बैंक अकाउंट वी हैव प्रिपेयर्ड, सो उसका बाई कैश बैंक इधर हो जाएगा टू, बाई कैश बैंक इधर हो जाएगा टू। नेम ऑफ द पार्टनर क्या है, परमजीत कैपिटल अकाउंट। कितना है परमजीत का कैपिटल अकाउंट, कितना है अमाउंट, तभी वी आर प्रिपेयरिंग कैश बैंक अकाउंट ऑल्सो, सो हमें ऑपोजिट इफेक्ट भी देना पड़ेगा कैश बैंक का। क्रेडिट का ऑपोजिट इज डेबिट, सो कैश बैंक क्रेडिट में है तो यहाँ पे हम लोग ऑपोजिट इफेक्ट पास करेंगे, दैट इज डेबिट। सो दिस वन वी हैव डन, सो यहाँ पे आएगा 70,000 एंड सेम वे यहाँ पे रंजीत और मंजीत का डेबिट में है तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा बाई आर्स कैपिटल अकाउंट, बाई आर्स कैपिटल अकाउंट, आर एंड एम इसे लिखते हैं, बाई आर्स कैपिटल अकाउंट और बाई एम्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 10,000 एंड 60,000। ये देखो कैश बैंक, वेयर आर वी, कैश बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो गया, 70,000 70,000। द सम इज डन, sorry not done, one most important thing is left out, that is balance sheet. Old books is done, now balance sheet is left, so balance sheet में हम क्या करते, इसको बोलते इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें कैपिटल ए, इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में हम बताते हैं, शेयर होल्डर फंड में क्या होता है, सॉरी शेयर होल्डर फंड में होता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड
सरप्लस. सो इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड. इक्विटी मतलब ओनर. ओनर कौन होते हैं कंपनी में? शेयर होल्डर. शेयर होल्डर का पैसा इज नोन एज शेयर होल्डर फंड. एंड शेयर होल्डर फंड में दो चीज आता है. एक तो शेयर होल्डर का कैपिटल, जिसको हम बोल सकते हैं. यही क्वेश्चन में कितना टाइप का कैपिटल है? ओनली वन, इक्विटी. एंड दूसरा नोट है रिजर्व्स एंड सरप्लस का. तो नोट्स टू अकाउंट अगर हम लिखते हैं, नोट्स टू अकाउंट, सो सबसे पहला नोट बनेगा शेयर कैपिटल का. शेयर कैपिटल में हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? हमारे पास क्वेश्चन में है 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो कि होता है हाउ मच? ईच इस 1,20,000. सो यहाँ पे लिखना है 1,20,000. अब तुम लोग बोलोगे पीसी में तो 12.5 में ये शेयर दिया है, प्रीमियम में दिया है. यस करेक्ट, ये शेयर प्रीमियम में दिया है. प्रीमियम में दिया है, इसीलिए प्रीमियम का जो पैसा है वो हमें रिजर्व्स में दिखाना पड़ेगा. रिजर्व्स एंड सरप्लस विच इज अवर नोट नंबर 2. कितना? रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन सा रिजर्व आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम में हम 12,000 शेयर को जो 2.5 का प्रीमियम दिया है वो लिखेंगे. गेटिंग माई पॉइंट? 12,000 इंटू 10 इज द शेयर वैल्यू ऑफ शेयर. बट जो एडिशनल 2.5 है 12.5 में जो प्रीमियम है वो 30,000 हमें अलग से दिखाना पड़ेगा अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कैपिटल बी, जिसको बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज में हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो इसके लिए हमें पीसी देखना पड़ेगा. एक मिनट, लेट अस सी द पीस. वो देखने से पहले लेट अस जस्ट राइट डाउन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है? जरा लाइबिलिटी साइड में देखो. पीसी में एक बार, पीसी में हमारे पास लोन फ्रॉम बैंक है. लोन फ्रॉम बैंक ये करंट एसेट नहीं हो सकता. बैंक लोन इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी. बैंक लोन, बैंक से लोन लेना एक दिन में तो नहीं, हम एक साल में तो 100% वी कैन नॉट रीपे. तो बैंक लोन इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग. एंड जब हम पीसी देखते हैं तो डिबेंचर 66,000 इज ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग. तो ये क्वेश्चन में हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है उसमें दो चीज है. एक तो लोन फ्रॉम बैंक which is 5 lakh and second is debentures which is how much? 66,000. दोनों को ऐड करें तो इट इज कमिंग 5,66,000. सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा? 5,66,000. दिस इज व्हाट? दिस इज नोट नंबर 3. तो इसको हम बोल सकते हैं टोटल. तो इसके बाद दिस इज ऑल्सो डन. इसके बाद शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जिसको हम बोलते हैं कैपिटल सी, करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज के लिए गो एंड चेक द पीसी. हमारे पास कौन सा करंट लाइबिलिटी है? क्रेडिटर्स है. क्रेडिटर्स को हम बोलते हैं ट्रेड पेएबल. क्रेडिटर्स को बोलते हैं ट्रेड पेएबल्स.
तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 94,000। सो यहाँ लिखेंगे 94,000। तो इसके साथ दिस इज लाइबिलिटी टोटल। नाउ वी कम टू द असेट टोटल। असेट टोटल के लिए अगेन हमें पीसी देखना है, बिकॉज नया कंपनी ने ये सब असेट्स को टेक ओवर किया है। सो नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट में हम लिखते हैं, नॉन करंट असेट में हम लिखते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें हम लिखते हैं टैंजिबल assets and intangible assets। tangible assets क्या क्या है? गो टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, हमारा पीसी में जाओ। टैंजिबल एसेट्स हमारे पास तीन है, लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट। लैंड 1,50,000, प्लांट 50,000, सॉरी बिल्डिंग 50,000 एंड प्लांट 2,50,000। दिस बिकम्स हाउ मच? 4,50,000। तो चलो लिखते हैं, डायरेक्टली आंसर चाहिए पर हमें यहाँ पे नोट्स में दिखाना पड़ेगा ना पहले, बिकॉज मोर देन वन आइटम, सो यू विल हैव टू राइट इन द नोट्स टैंजिबल, टैंजिबल असेट्स क्या क्या हमारे पास? लैंड है, बिल्डिंग है, लैंड है, बिल्डिंग है एंड प्लांट है। 1,50,000, 50,000 and 2,50,000। 1,50,000, 50,000, 50,000 and we have 2,50,000। ये सबको ऐड करते हैं तो इट इज कमिंग टू हाउ मच? 4,50,000। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे here, here how much it is? 4,50,000 ये फोर्थ नोट। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट तो क्वेश्चन में है ही नहीं, गुडविल भी नहीं है, दूसरा भी कुछ नहीं है। तो इसके बाद वी हैव टू गो टू करंट एसेट। इसके बाद विल गो टू कैपिटल बी, करंट एसेट। करंट एसेट में हमारे पास क्या है? लेट्स सी इन द क्वेश्चन। पीसी में देखो, स्टॉक एंड डेटर 2,70,000, 90,000। सो इधर स्टॉक को क्या बोलते हैं? स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्रीज। डेटर को क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। सो इन्वेंट्री का अमाउंट क्या है? इन्वेंट्री का अमाउंट है 2,70,000, वी जस्ट सॉ। ट्रेडर डेटर्स का अमाउंट क्या है? 90,000, वी जस्ट सॉ। तो अभी द टोटल लिखो and just tally both, see whether it is getting tallied। 1,20,000, 1,20,000, 30,000, 5,66,000, 94,000। See what total you are getting. What total you are getting? 8,10,000. Yes, correct.
8,10,000. With this sum is done.